Good evening, students. Today we'll start with the new ICSC poem of class 10, A Considerable Speck. This poem is written by Robert Frost, and this poem talks about an ordinary situation that can happen in anyone's life, but it is hardly noticeable. And the poet has narrated that incident in a very beautiful and a descriptive manner. So, before starting the poem, let's know some facts about the poet, whose name is Robert Frost. Robert Lee Frost was an American poet renowned for his depictions of rural New England life, his realistic verse portraying ordinary people in everyday situations. So this poem is written by the poet whose name is Robert Lee Frost, and he was an American poet. And he used to write about New England life, especially of the rural areas, and his depictions normally talked about ordinary people in everyday situations, common incidences in everyday life. He normally talked about those incidents in his poems. His works frequently employed themes from the natural world and championed common speech. So his themes were basically concerned with the natural world, and the language of his poems was very simple. It was not very complex. It could be easily understood by the readers. He received 4 Pulitzer Prizes for poetry and was a much honored poet of his era. And for his poems, he has received 4 Pulitzer Prize. That is a very commendable job. And he was a very famous poet of his era. And some of his famous works include The Road Not Taken, Stopping by Woods on a Snowy Evening, and The Mending Wall. These are some of the famous poems of Robert Frost. So currently we'll be reading about a poem. The name of the poem is A Considerable Speck. So let's start with the para. A speck that would have been beneath my sight on any but a paper sheet so white, set off across what I had written there, and I had idly poised my pen in air to stop it with a period of ink, when something strange about it made me think. This was no dust speck, but by my breathing blown, but unmistakably a living mite, with inclinations it could call its own. So the poet is saying that I have seen a speck on my शीट ऑफ पेपर, उसके पेपर पर उसको एक छोटा सा टुकड़ा दिखा था, विच ही वुड हैव हार्डली नोटिस्ड, जो नोटिस भी ना करता, बिकॉज इट वॉज वेरी स्मॉल, नोटिस करने लायक भी नहीं था. सेट ऑफ अक्रॉस वॉट आई हैड रिटन देयर, और उस पेज पे उसने जो भी लिखा था वहाँ पे वो उसको दिख रहा था. इट वॉज विजिबल टू हिज आईज, बट इट वॉज नॉट दैट मच large which could be noticed by the poet. And I had idly poised my pen in air to stop it with a period of ink. So the poet thought that उसके पेन से जो इंक है वो पेपर पे ना स्मेयर हो जाए और वो आगे डैमेज ना हो जाए, या उस डस्ट को उस पर वेट ना कर दे, उसको वहाँ पे उसको स्टिक ना कर दे. इस डर से पोइट ने जो अपना पेन था वो उसको हवा में ही रहने दिया. ही हेल्ड हिज पेन इन एयर to stop it with a period of ink, because he was having a fear in his mind that with a drop of ink the dust might stick to that paper, maybe causing a damage to the paper or the dust itself. So with that fear in his mind, he held his pen in the air. When something strange about it made me think, this was no dust speck by my breathing blown, but unmistakably a living mite with inclinations it called its own. फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि पोइट के दिमाग में आता है कि नो, इट्स नॉट अ स्पेक जो कि मेरे ब्रीदिंग से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, बल्कि इट इज़ अ लिविंग माइट. बल्कि ये क्या है, एक छोटा सा इंसेक्ट है, बिकॉज द मूवमेंट वॉज क्लियरली विजिबल. एक जो डस्ट होती है वो मूव नहीं करती है, इट सिंपली ब्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट दैट पर्टिकुलर स्पेक वॉज मूविंग, क्रॉल कर रहा था. एंड विद द मूवमेंट द पोइट had a thought in his mind that it was not a ordinary speck, rather it was a living insect. With inclinations it could call its own. और उसके अपने खुद के उसके मूवमेंट से पता चल रहा था कि इसके पास भी इंटेलिजेंस है, इसके पास भी इसकी फीलिंग्स हैं, जो उसके मूवमेंट से साफ क्या हो रहा था, विजिबल हो रहा था. तो here in these lines he has talked about that while he was writing on a sheet of paper, he noticed a speck, and that speck was not a
dust that could have been blown by his breathing air. Rather, it was a living insect with which was clearly visible because of the movement it was having on its own, and it showed that the insect moving on that particular sheet of paper was having some feelings and some emotions in it. It paused as if with the suspicion of my pen and then came racing wildly on again. फिर अचानक से क्या होता है, जो इंसेक्ट है उसको लगता है कि पेन का मूवमेंट से कहीं उसको हार्म ना हो जाए, उस डर से वो क्या करता है, तुरंत तुरंत जल्दी से रेस करके उस उस पर्टिकुलर प्लेस से क्या होने लगता है, दूर होने लगता है. To where my manuscript was not yet dry, then paused again and either drank or smelled. With horror, for it again turned to fly. फिर उस एरिया में आ जाता है जहाँ पे पोइट ने कुछ लिखा होता है. मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब समथिंग रिटन, और वहाँ की जो इंक थी वो अभी ड्राई नहीं हुई थी. तो द इंसेक्ट केम टू दैट पोर्शन वेयर द इंक वॉज नॉट येट ड्राई, और वो या तो उस इंक को क्या करता है, या तो उसको ड्रिंक कर लेता है या तो उसको स्मेल कर लेता है. And the next reaction is that the insect is not liking the smell or either the taste of that ink, because the very next moment he start turning and he started flying. मतलब ये जो मूवमेंट है उसका, जो ये एक्शन है वो ये बता रहा है कि जब उसने उस वेट इंक को या तो ड्रिंक किया या तो स्मेल किया, तो उस केस में उसको ना तो उसका टेस्ट अच्छा लगा, ना तो उसकी स्मेल अच्छी लगी, और उस रिस्पॉन्स में ही टर्न अगेन टू फ्लाई. तो ये कहीं ना कहीं एक दिखा रहा है कि ही इज़ नॉट लाइकिंग द कंटेंट ऑफ द इंक, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम इट्स स्मेल और इट्स टेस्ट. Plainly with an intelligence I dealt. It seemed too tiny to have room for feet, yet must have had a set of them complete to express how much it didn't want to die. फिर बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ जो पोइट है वो उसके साथ क्या कर रहा है, डील कर रहा है. तो नाउ ही सेइंग दैट जो इंसेक्ट है वो इतना छोटा है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि उसकी बॉडी में स्पेस भी है उसके फीट के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना छोटा है, तो उसमें स्पेस कहाँ होगा. जैसे वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव आवर लेग्स, तो आवर लेग्स आर विजिबल बिकॉज वी आर क्वाइट टॉल, एंड द अपीयरेंस ऑफ लेग्स एंड द बॉडी, जो हमारा रेशो होता है वो क्या होता है, बैलेंस्ड होता है. पर जो छोटा सा इंसेक्ट होता है वो हार्डली ऊपर से लगता भी नहीं है कि उसके फीट भी होंगे, लेकिन उसके फीट जो थे वो थे, एंड दैट टू वॉज इन कम्प्लीट सेट, क्योंकि उसके मूवमेंट से पता चल रहा था कि उसके फीट प्रॉपर थे, और वो उसके मूवमेंट से ये समझ में आ रहा था कि इट डिडंट वांट टू डाई, वो मरना नहीं चाह रहा था. क्योंकि जब पेन का मूवमेंट होता है तो ही गॉट अ फियर इन हिज माइंड कि पेन से हो सकता है वो क्या हो जाए, पोइट उसको मारना चाह रहा है या उसको इंजर्ड करना चाह रहा है या उसको हार्म पहुंचाना चाह रहा है. तो उसके मूवमेंट से वो भी समझ में आ रहा था कि द इंसेक्ट वॉज हैविंग सम इमोशंस एंड फीलिंग्स विद इन इट, एंड इट नेवर वांटेड टू डाई. तो अपने को बचाने के लिए वो पूरी क्या कर रहा था, एफर्ट्स डाल रहा था. दैट वॉज क्लियरली विजिबल फ्रॉम हिज मूवमेंट्स. It ran with terror and with cunning crept. It faltered. I could see it hesitate. उसके बाद the next action of that insect was that it ran with terror. वो बहुत डर गया था, वो भागने लगता है. And with cunning crept. चालाकी से वो वहाँ से बचने की कोशिश कर रहा था. It faltered. It faltered means उसका जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी कम हो गया था, तो अब उसकी जो वॉकिंग की स्पीड थी वो थोड़ी सी स्लो हो गई थी. आई कुड सी इट हेजिटेट, और वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट भी कर रहा था. उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वॉट इट शुड डू, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि अब वो ट्रैप में फंस चुका है. सो इट वॉज नॉट हैविंग दैट सेंस कि वॉट इट शुड डू इन ऑर्डर टू सेव इट्स लाइफ. And in the middle of the open sheet, cowered down in desperation to accept whatever accorded it of fate. So finally, बहुत ज़्यादा इधर उधर करने के बाद ऐसा लग रहा था कि वो सरेंडर्ड हो चुका है, और अब वो जो मिडिल होता है शीट का वहाँ पे जाके वो बैठ गया है. नाउ ही हैज़ सरेंडर्ड इट्स डेस्टिनी इन द पोइट्स हैंड. अब वो मतलब एक तरह से पोइट को बता रहा है कि नाउ आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग अप टू योर विल. नाउ इट्स योर डिज़ायर, whether you want to kill me, whether you want me to survive, whatever you want to do with me, it's your will. Now I have surrendered my life to your will. I have none of the tenderer than thou political collectivistic love
with which the modern world is being swept. But this poor microscopic item now, since it was nothing I knew evil of, I let it lie there till I hope it slept. अब पोइट कह रहा है कि मेरे मन में कोई बहुत ज़्यादा टेंडर फीलिंग नहीं है जो कि नॉर्मली कॉमन लोगों में देखने को मिलती है, डेट दे लव समथिंग टू मच, और एक सिंपथी वाली फीलिंग आ जाती है लोगों के मन में. तो आई एम नॉट हैविंग दैट टेंडर हार्ट. लेकिन हाँ, मुझे इंसेक्ट को देख के कुछ गलत इंटेंशंस भी नहीं आ रहे, क्योंकि इट्स सच अ स्मॉल टाइनी एनिमल, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, और इसको मुझे हर्ट करने का भी कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे मन में इसको बिल्कुल भी हार्म करने का कोई इंटेंशन नहीं है. तो मैंने भी इसको छोड़ दिया है. एंड नाउ आई लेट इट लाई देयर टिल आई होप इट स्लेप्ट. अब यहाँ पे स्लेप्ट के बहुत सारे मीनिंग्स निकल के आ सकते हैं कि जब तक वो चाहे वहाँ पे रुकना वो रुक सकता है, या जब तक वो सर्वाइव करना चाह रहा है वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, या अगर वो चाहे तो वहाँ से उड़ के भी जा सकता है. नाउ द पोएट हैज़ लेट हिम डू ऑन इट्स ओन. अब उसकी मर्ज़ी है, उसको जो करना है करे, क्योंकि पोइट उसको बिल्कुल भी हार्म करने के इंटेंशन में नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं इंसेक्ट के माइंड में एक फियर है कि ही हैज़ सरेंडर्ड इट्स लाइफ अप टू द विल ऑफ द पोइट. लेकिन जो पोइट है वो उसके साथ कुछ भी गलत करना नहीं चाह रहा है, बिकॉज ही इज़ नॉट फीलिंग एनी इविल फीलिंग फॉर डैट माइक्रोस्कोपिक एनिमल. तो उसने भी उसको वहीं पे छोड़ दिया है. अब वो उसने इंसेक्ट पे छोड़ दिया है कि उसको वहाँ पे रेस्ट करना है, कितनी देर तक रहना है, कितनी देर तक उसको सर्वाइव करना है, या बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ से उड़ भी जाएगा. तो नाउ ही हैज़ लेट द insect lie there. I have a mind myself and recognize mind where I meet with it any guise. No one can know how glad I am to find on any sheet the least display of mind. अब यहाँ पे लास्ट की 4 लाइन्स में पोइट कह रहा है कि आई एम अ इंटेलिजेंट क्रिएचर, और मैं अब मेरे पास इतना दिमाग है कि मैं अगर मेरे सामने कोई चीज़ है, उसके पास अगर दिमाग है तो मैं रिकोगनाइज़ कर लूँगा. और यहाँ पे जो इंसेक्ट है उसके पास दिमाग था, क्योंकि इट वॉज मेकिंग इट्स एफर्ट टू सेव इट्स लाइफ. तो कहीं ना कहीं ये तभी करता है कोई इंसान जब उसके पास क्या होता है, दिमाग होता है. तो नाउ ही हैव रियलाइज दैट कितना छोटा भी क्रिएचर अगर है तो उसके पास अपना एक इंटेलिजेंस लेवल है, जिसको वो अपने लेवल पे क्या करता है, यूज़ करता है. एंड द पोइट हिमसेल्फ इज़ अवेयर ऑफ दिस थिंग बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ एन इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग. और वो अपने इंटेलिजेंस से सामने वाले के इंटेलिजेंस को क्या कर लेता है, रिकग्नाइज कर लेता है. नो वन कैन नो हाउ ग्लैड आई एम टू फाइंड ऑन एनी शीट द लीस्ट डिस्प्ले ऑफ माइंड. और वो कह रहा है कि मैं बहुत खुश था जब मुझे एक पेज पे छोटे से इंसेक्ट में दिखा कि हाँ उसके पास भी माइंड है. तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि इट्स नॉट दैट ओनली human beings have mind, even the smallest creation of God has a mind of its own, जिसका वो बहुत अच्छे से क्या करता है, यूज़ करता है. And this incident has proved that even the slightest creature made by God has its own intelligence, जिसका वो अपने लिए एक पॉजिटिव क्या करता है, यूज़ करता है. तो एक बहुत ही सिंपल सी पोएम थी, एक छोटा सा इंसिडेंट था कि द पोएट इज़ वर्किंग ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड ही ऑल ऑफ अ सडन नोटिस्ड अ स्मॉल स्पेक. पहले उस स्पेक को डस्ट से डाउट करता है, पर जब उसका मूवमेंट होने लगता है तो उसका डाउट ख़त्म हो जाता है. एंड इट बिकेम वेरी क्लियर टू हिज माइंड दैट इट वॉज नॉट अ स्पेक, रैदर इट वॉज अ स्मॉल इंसेक्ट. तो आई होप द पोएम इज़ क्लियर. नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर अप द वर्ड मीनिंग्स एंड द figure of speech used in this poem.